This is Akashvani. We now bring you a radio report of the 56th International Film Festival of India being held in Panaji, Goa. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है पणजी गोवा में आयोजित 56वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट। Welcome back to the airwaves. Today marks the penultimate day of screenings at the International Film Festival, and all eyes are on the contenders for the coveted Golden Peacock Award. The final films in the international competition are being reviewed, and the jury, led by Rakesh Om Prakash Mehra, has a monumental task ahead of them in picking a winner from this exceptionally strong lineup. ये हिंदुस्तानी सिनेमा, ये मूवीज, ये फिल्में रहती हैं। Today's major event was the 3 masterclasses. One on Northeast cinema featuring filmmakers from northeastern states. Another on 50 years of Sholay featuring director Ramesh Sippy. And the third one was entitled The Narrative, Architect of Social Transformation, and it featured well-known actor Aamir Khan. Indira Tiwari is the lead actress of the film Rubaru, which has been screened in this IFFI. She tells more about this film to Priyanka Mayapur. I am actually mesmerized with the responses, the way audience is receiving the first film as well as the second film, Rubaru, which is a short film of 30 minutes. And बोलते हैं ना कि कम समय में ज़्यादा बड़ी बातें कह जाना, कम समय में अपनी सारी बातें जो हम कहना चाहते थे through Rubaru. It's very well received from audience and I'm very thankful to IFFI क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है IFFI की जो मैजिकल बात है ना कि मैं कल ही बात करते करते ऐसे सोच रही थी कि एक जगह मेरी एक फिल्म है जो एक कांस अवार्ड विनिंग डायरेक्टर की है स्पाइंग स्टार्स और विमुक्ति सर एंड एक जगह मैं एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर द डेब्यू डायरेक्टर कपिल तंवर जी की फिल्म करती हूँ रूबरू एंड हम सब लोग मिलके और बहुत सारे नए आर्टिस्ट आए जो कि आगे अपनी फिल्म लाएंगे तो हाउ ब्यूटीफुल दिस फेस्टिवल इज and I'm the example of who is actually enjoying and celebrating my own self as well as celebrating most artists here. उनसे मिलना बात करना it's really amazing. Congratulations. Can you tell us a bit about the film? Yeah. So रूबरू हमारी जो फिल्म है ये 30 मिनट की फिल्म है और इसमें हमने हिंदी मारवाड़ी हमारी लैंग्वेज है. It's about 2 sisters. एक रुदाली है एक नचनिया है. And how these young women, young girls representing the whole scenario, whole area जहाँ पे इतनी महिलाएं हैं और शायद इतनी औरतें न जाने लाइफ में कितना बोलते हैं ना हमें बचपन से एक चीज दे दी जाती है कि यही तुम्हारे दायरे हैं तुम्हें बताया जाता है कि दिस इज द वे यू हैव टू बी इन दिस सोसाइटी बट इट्स नॉट वी थॉट ऑफ लाइक वी आर लिविंग इन सिटीज there are so many people we thought they all are happy no if you go each and every person and personally if you talk to them they are not happy so what is the thing which they are looking for and these 2 women's how they come up and at some point इनका जो प्रोफेशन है वो उसमें कैसे डेली लाइफ में अपनी जिंदगी की वो छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेती हैं बट वो समझौता उन्हें नहीं चाहिए और एक दिन जो आवाज इतनी दबा दी जाती है वो एक दिन एक चीख के साथ निकलती है और वो हर वो चीज बता देना चाहती है सोसाइटी को जो उन्होंने गलत किया है एंड वो बोलते हैं ना हमारे एक बार आवाज उठाने से दुनिया के सभी लोग साथ आते हैं और फिर हर वो इंसान जो कहना चाहता है करना चाहता है चाहे वो खुद के लिए हो चाहे वो दूसरों के लिए हो वो अपनी बात बहुत ही सहजता से या फिर जिस भी फील्ड में वो है एज इट इज दुनिया के सामने रख देता है और तब बदलाव आते हैं तो रूबरू खुद से मिलकर दूसरों से मिलकर खुद से मिलने की कहानी है आप खुद से मिल नहीं पाते पर जब आप किसी और से मिलते हैं तो वो आपको हिम्मत देता है और बताता है कि आपके पोटेंशियल क्या हो सकते हैं. Journalist and film critic from Pune, Shri Nikhil Gajendra Gadkar, has been visiting IFFI since last many years. How does he find this year's film selection? He elaborates in a conversation with Dr. Saish Deshpande. श्रोताओं हमारे साथ है पुणे के केसरी के सह संपादक तथा सिने रसिक जो हमेशा इस IFFI में आते हैं उनसे जान लेते हैं कि इस वर्ष की स्पर्धात्मक विभाग की फिल्में तथा वर्ल्ड सिनेमा में उनको क्या अच्छा लगा क्या वो रेकमेंड करना चाहेंगे. नमस्ते जी. नमस्ते. मेरा नाम है निखिल गजेंद्र गडकर. मैं पुणे के केसरी का कार्यकारी संपादक हूँ और मैं हर साल गोवा में IFFI के लिए आता हूँ. मुझे ये कहने में खुशी होती है कि इस साल IFFI में विदेशी फिल्में बहुत अच्छी आई हैं
जिम जारमुश की फिल्म फादर मदर सिस्टर ब्रदर एक बेहतरीन फिल्म है। जोकिम ट्रियर की सेंटिमेंटल वैल्यूज बहुत ही अच्छी फिल्म थी। ईरान के सुविख्यात दिग्दर्शक जफर पनाही इनकी नई फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय समारोह में सराही गई है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, वो भी एक बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्मों ने फिल्म के रसिकों को बहुत आनंद दिया है। जो इंटरनेशनल कंपटीशन है इस वर्ष बहुत अच्छी फिल्में आई हैं। जर्मनी की कार्ला एक अच्छी फिल्म थी जो डेब्यू डायरेक्टर विभाग में भी स्पर्धा में है। एक फ्रेंच फिल्म मुआ की तेम, वो भी एक अच्छी फिल्म थी जो 2 प्रख्यात चित्रपट अभिनेताओं के जीवन पर आधारित है। दक्षिण अमेरिका से आई पोएट जो एक थोड़ी सी कॉमिक भी है और थोड़ी सी दार्शनिक भी है, वो भी अच्छी फिल्म थी। अमरूम जो भी जर्मनी से आई है। इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में मैं और एक फिल्म का जिक्र करना चाहूँगा, मदर्स बेबी, ये भी जर्मनी से है और हम कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा रहस्य है, सस्पेंस है। माँ का जो दिल होता है उसको ये दर्शाती है। थोड़ा सा थ्रिलर की तरफ जाने वाली ये फिल्म है, वो भी स्पर्धा में है और हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी स्वर्ण मयूर का हकदार हो सकता है। जो उनकी कथन शैली है, जो विषय लिए हैं, इसके बारे में एक और फिल्म का जिक्र करना मैं चाहूँगा जो पश्चिम एशिया से आई है, सॉन्ग्स ऑफ एडम। एक बेहतरीन कथा वस्तु, अनोखी कथा वस्तु और उसका अनोखा प्रस्तुतिकरण जो चित्रपट देखने वालों को विचार करने के लिए प्रवृत्त करती है। तो कुल मिलाकर जो कंपटीशन सेक्शन है उसमें अच्छी कथाएं, संस्कृति का दर्शन हुआ और ये सभी फिल्में काबिले तारीफ थी, ऐसा आप मानते हैं? जी जी, सभी काबिल तारीफ हैं। एक नया पहलू उस जीवन का हमें दर्शाती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये फिल्में बहुत ही अच्छी हैं। तो लेट द बेस्ट फिल्म विन। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। Saukarya Ghoshal, the director of the science fantasy film Poki Rajaradim, tells us more about this film that has been screened at this IFFI. This is a science fantasy film. ये जो कहानी है ये एक based on a काल्पनिक जगह आकाशगंज। There's a village called आकाशगंज जहाँ पर एक मैड साइंटिस्ट रहता है, उसका नाम है बटब्याल। वो अजीब किस्म का एक गांव के स्कूल में पढ़ाता है। वो अजीब किस्म का एक्सपेरिमेंट करता है। मतलब वो अगर फ्रिक्शन पढ़ाना हो क्लास 12 और 11 के स्टूडेंट को, तो वो जमीन पे ही स्प्रेड्स मोबिल एंड जस्ट waits for other to slip on, and then he would practically teach the student that how friction works. To teach gravitation, he would take the students to the apple tree and wait for the apple for the day to fall to give the essence of Newton's theory. He's a very mad teacher. So school headmaster also fed up of him. But he has a backstory. He was an aspiring scientist. He was a brilliant student, and once he got a very precious chance to go to the West to study and do research. But his father, who was actually a scientist, but he never left his country. He was a very country-loving man, and he always believed that to be a noble scientist, you must love your own country. So leaving your own country is not the solution to become a successful scientist. But this man, in the young age, used to believe that in this, in this country, you can't thrive if you don't go to the West. So he got the chance. But by then the father dies in a mishap. So he comes back and he stays in the village. So the backstory is that his father died because his father was doing a research on a very intricate subject, which was based on the Einstein's theory of general theory of relativity, which suggests that light doesn't travel in a straight line. Navadita Mishra spoke to Pooja Sharma, the director of the film Vimukt. ये दिमाग में कहानी ट्रैवल करते वक्त आई जब मैं ट्रैवल कर रही थी एमपी मेरी सिस्टर के साथ। उस दौरान एक फ्रेंड हमें एक शेल्टर होम है एमपी में ही, जो एक छोटे से गांव में है, वहाँ पे हमें लेके गए और वहाँ पे पूरा दिन हमने वहाँ पे बिताया। तो वो शेल्टर होम था मेंटली डिसेबल पीपल का, और वहाँ पे देखा कि काफ़ी लोग जो मेंटली डिसेबल हैं उनकी लाइफ कैसी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें छोड़ दिया गया था भीड़ में या कहीं पे, और उन्हें रेस्क्यू करके इस शेल्टर होम में लाया गया।
तो उसके बाद फिर हम घर गए, लेकिन वो जहन में कहानियां घूमती रही कि हर एक इंसान की अलग अलग कहानी है, हर एक इंसान जो इंडिविजुअली वहाँ पे रह रहा है उसका बैकग्राउंड है, उसकी कहानी है, उनकी भी मदर है, उनकी भी फैमिली है, वो कैसे रह रहे हैं, क्या कारण होगा कि उनकी फैमिली को छोड़ना ही पड़ गया। तो फिर उसके बाद में काफ़ी रिसर्च लगी, हमने काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े कि कुंभ में भी लोग छोड़ते हैं, तो उस पर आर्टिकल्स थे काफ़ी सारे थे कि कुंभ, इसलिए कुंभ के नाम से पहली चीज़ यही ध्यान आती है, कुंभ का मेला और किसी को छोड़ दिया। पहले से अगर हम देखते आए इतने सालों से, वो बहुत फेमस होती हैं कहानियाँ। तब मेरे जहन में आया कि इन चीज़ों को कनेक्ट द डॉट्स कि एक मेंटली डिसेबल लड़का है, एक गांव में रहने वाली फैमिली है, कुंभ आ रहा है, तो इसके दौरान फिर ये रिसर्च से कहानी इट केम फ्रॉम इनसाइड, यू नो, विद अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। या तो जब आपके पास कहानी आ गई तो आपको क्या लगा कि कैसा ट्रीटमेंट होगा, आप किसको एंगेज करेंगे अपने साथ, वो कैसे आपने, मतलब अगला स्टेप आपका क्या रहा उसके बाद? तो आई वॉज वेरी क्लियर कि ये गांव में ही शूट होगी, क्योंकि गांव की कहानी थी और एमपी में ही हम लोग गए हुए थे। तो जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो सारे गांव जो आप देख रहे हैं मूवी में, वो सब हम लोगों ने पहले ही देख लिए थे एज अ टूरिस्ट, नॉट एज अ रेकी पर्सन और सिनेमेटोग्राफर और एज अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। तो मुझे लगा कि ये इसका बैकड्रॉप बहुत अच्छा होगा, यही हमें कहानी में यूज मिलना, ये ऑथेंटिक लग रहा है बहुत ज़्यादा। फिर मेरी मुलाकात जितांग से हुई, जो एमपी से ही हैं, उन्होंने मुझे और जाके और सारी चीज़ें दिखाई कि यहाँ पे हम शूट कर सकते हैं। फिर हम शैली से मिले, तो ये सब धीरे धीरे टीम बनी और उसके बाद फिर लगा कि यहीं पे शूट करना है, यही बैकड्रॉप चाहिए। OTTs have become an integral part of the movie viewing in India. Priyanka Mayapur spoke to Arnika Singh of Netflix India about their children-specific initiative in this country. Arnika Singh. Hi everybody, I am representing Control Shift and Empower, which is an initiative of Netflix India and Social Media Matters, and very happy to be speaking here at Akashvani. Welcome, Arnika. Could you tell us a little bit about your association with IFFI? We are Social Media Matters, but here we have been brought in by Netflix India. The team has an amazing initiative called Control Shift and Empower, which focuses on encouraging age-appropriate content for children specifically, and also Netflix has some amazing parental controls that they have developed specifically to make sure that parents and caregivers who want to really mentor the viewing experience of their children who are watching a lot of content on OTT can take some help and mentor their viewing experiences. So you will find that there are tools like lock the profile, create a kid's profile, set up the maturity ratings, and all of this. So this is what is the core agenda of Control Shift and Empower, which is only about putting the best interest of children at the forefront and making their viewing experience as best as possible. Fantastic. How do you think Netflix is shaping the future of Indian cinema and independent filmmaking? I think they've done it already. Like, you know, they've bring in a plethora of content, accessible. They've made it accessible to everybody. Like, you know, you don't really have to wait up and wait for a film to be released in theaters. It's already out there. I mean, of course, there is a release date on Netflix too, but you still find it more accessible. We are all working like day and night, and, you know, hardly right now find times to go into theaters. But this is something like you can just switch it on, be at your couch in your own drawing rooms and have a great family time together. So I think they've already made a stride in the cinema, and I think bringing global cinema together, Netflix has played a huge role. And specifically for children content, there is plethora. Parents have so many choices, and the best part is you can really go and choose that, okay, this is, so there is 7 plus, 13 plus, 16 plus. You can really make an informed choice of what would be the best viewing experience for your child. So I think that's the best part that they have done. Simon Mesa Soto, director of the film A Poet, that has been screened in this festival, tells us what made him make the film. I made this film because this is my second film. Welcome. And my first film was very difficult for me to make. When I finished it in 2020 during the pandemic, there was no festival, nowhere to screen it, and I thought I would give up cinema in Colombia to make films, independent films. And I'm also a professor. I teach cinema, and I live out of teaching. I don't. Until now, I'm earning a bit, but I live out of being a professor, and. I thought about but then I thought, like, what kind of professor would I be in 20 years?
like a failure of a professor. This guy who is always showing this film he made when he was young. So I decided I will do a film about the worst version of myself in 20 years. But it was more interesting to make it about a poet than to a filmmaker. That's it. And that's it. So it's a true story of myself in 20 years. Well-known actress Rajeshwari and filmmaker Bharat Bala expressed their opinion on the current situation in the film industry. पहले इतनी फिल्में बनती थी, इतना टैलेंट था, अब इतना काम हो रहा है, इतना टैलेंट है, तो डेफिनेटली जितने प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक को जरूरी नहीं कि वो फिल्म मिल जाए या वो सीरियल मिल जाए, आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं तो काम हर एक के पास है, अपनी कला को दर्शाने का मौका हर एक के पास है, तो ये तो अपने आप पे सुनहरी मौका है सबके लिए। एक डर है कि आजकल सम शोज आर मोर एक्सपेंसिव देन फीचर फिल्म। दैट इज अ रॉन्ग कल्चर। अभी क्या है, अगर उसमें अगर लग गए अच्छी, people start liking it. So studios will say let's do only big budget shows. जैसे मेरे को मार्वल फिल्म बनाना है, मेरे को सिर्फ बिग बजट शोज बनाना है, so हम all our छोटा shows will again be struggling and starving. So I think this platform, I think we really need to see to it. It's also about audiences loving the right shows. Jairam Wagmore has brought his short film The Untold Agony in this festival. He tells Yunus Khan about the making process of this film. मेरा नाम जयराम भास्कर वाघमोड़े है। द अनटोल्ड एग्नी का लेखक, दिग्दर्शक और संकलक। और ये जो कहानी है 2023 में एक रियल घटना घटी है महाराष्ट्र में, तो उसी पर बेस्ड है। कुछ मजदूर थे जिनको मजदूर अड्डों से क्या बोलते हैं उसको, झूठ फसला और मतलब ऐसे करके उनको किसी अनजान जगह पर लेकर जाकर उनसे काम करके लेते हैं, उनको पैसे नहीं देते, भागना जा सके इसके लिए पैरों में चेन वगैरह बांधते थे, लॉक करते थे, उनको खाने के लिए ठीक नहीं मिलता था। तो ये न्यूज मैंने अखबार में पढ़े थे, तो वो देखने के बाद थोड़ा शॉक हो गया कि यार ऐसा कैसा हो सकता है अपने यहाँ पर। पहले तो लगा ये बाहर का कहीं का होगा, तो करीब में घटा ऐसा लगा यार, और ये महाराष्ट्र की पहली गुलामी की घटना है, इसकी नोंद लगी। तो फिर मैंने सोचा कि यार इस पर कुछ मतलब थोड़ा 5-6 दिन तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, बस ध्यान में आता था बीच बीच में। और मेरा ऑलरेडी फिल्म का काम चालू था, फीचर फिल्म का, एक मराठी 6-7 साल उस पर मैं काम किया था। तो फिर फिल्में देखता हूँ, कुछ वर्ल्ड सिनेमा देखे, 12 इयर्स स्लेव मेरी फेवरेट फिल्म से एक है। तो वो मेरे दिमाग में आया कि यार ये कहानी कुछ उसके टाइप ही है, तो इस पर मैंने कुछ बनाना चाहिए। तो फिर मैं थोड़ा देखा कि कहाँ पर घटी है, तो यार थोड़ा है करीब गूगल पर वगैरह सर्च किया कि यार है यहाँ पर मैं जा सकता हूँ टू व्हीलर से। इतने बाहर से लोग आते अपने इंडिया में सिनेमा बनाते, ऑस्कर लेते, तो अपन कम से कम कहानी एक ठीक क्या बोलते हैं सही तरीके से कहने के लिए मुझे रिसर्च प्रॉपर करना चाहिए, मुझे थोड़े कहाँ पर दूर जाना है। तो फिर मैंने कोशिश की, जो उस घटना से जो अधिकारी वगैरह थे पुलिस, उनसे बोला कि सर मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। वो बोले ठीक है बनाइए, आपको हेल्प करते हैं वगैरह। तो फिर मुझे मजदूरों के नंबर वगैरह दे, मैं उनसे जाकर मिला और उन्होंने इंटरव्यू लेकर मैंने फिर उस इंटरव्यू का पार्ट लेकर फिर उस पर लिखा वगैरह। जब इसका सिलेक्शन इफ्फी के लिए हुआ तो कैसा महसूस हुआ? इफ्फी का तो वो बड़ा सबसे खुशी का दिन था, इफ्फी में सिलेक्शन होना, क्योंकि काफी स्ट्रगल ही चल रहा था, पढ़ाई कर रहे, सब कुछ चल रहा था और कहीं अच्छा कुछ हो नहीं रहा था। मतलब कुछ यार ऐसा घर वालों को बोल के यार मेरा कुछ अच्छा हुआ है, कभी मैं मतलब ऐसा कुछ फील हो रहा था। अचानक मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरा यहाँ पर होगा पैनोरमा में, ऐसा मेरा पहले से था। लेकिन अचानक यार ना मेल आने लगे, मुझे लगा यार मतलब मैं थोड़ा कुछ तो पॉजिटिव है। जब रिजल्ट अचानक आ गया 2-3 दिनों बाद, तो इतना खुशी हुआ कि मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। और घर वालों को वगैरह बोला, वो भी काफी खुश हो गए। मैं तो पहले रोया था क्योंकि मुझे यहाँ पर आने का एक ड्रीम भी था, फिल्में देखने के लिए वगैरह। फिल्में भी देख रहा हूँ और फिल्म भी है मेरी खुद की। मुझे मेरी जफर फनाई सर की फिल्म देखना मिस हो गई, कल भी तीसरी स्क्रीन हो गई, पर मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरी स्क्रीनिंग हुई थी और काफी सारे गेस्ट आए थे, तो थोड़ा बुरा लगा। मेरे दोस्त को बोला कि यार मैं फिल्म नहीं देख पाया यार, उनकी काफी बुरा लग रहा है। वो बोला यार तो इसमें खुशी मान कि उनके साथ तेरी फिल्म लग रही है। और मैं अभी वो मूवी ने सेल्स किया, मेरा मूवी का अकाउंट है, मैं मूवी पर देखूंगा फिल्म। Now, here is Dr. Saish Deshpande with his report on the screenings in today's Indian Panorama section.
इफी 2025 वर्ष का इंडियन पैनोरामा सेक्शन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विविधता को दर्शाने वाली फीचर और गैर फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए एक प्रमुख मंच रहा, जिसने देश के कोने कोने से बेहतरीन फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। फीचर फिल्म सेक्शन के लिए इस वर्ष 25 फिल्मों का चयन किया गया, जिसमें 5 मुख्य धारा सिनेमा की फिल्में भी शामिल थीं। इसके अलावा 20 गैर फीचर फिल्मों को भी प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। भारतीय चित्रावली प्रभाग में मुख्य धारा की फिल्मों में रणदीप हुडा द्वारा निर्देशित स्वतंत्रवीर सावरकर और तेजस प्रभा विजय देवस्कर द्वारा निर्देशित ग्राउंड जीरो जैसी फिल्में भी शामिल थी। विस्पर्स ऑफ द माउंटेन्स ये इंडियन पैनोरामा में प्रदर्शित होने वाली पहली राजस्थानी भाषा की फीचर फिल्म बनकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बनी। मराठी गोंधळ, तुळु इम्बू और उड़िया मालपुत मेलोडीज जैसी फिल्मों ने क्षेत्रीय भाषाओं की विविधता को सामने रखा। आज के दिन भारतीय चित्रावली विभाग में जो फिल्में दर्शाई गई वे हैं मराठी फिल्म आता थांबायचं नाय, ARM, पोखिरजेर डीम, द बंगाल फाइल्स और केसरी चैप्टर 2। इनके अलावा जो नॉन फीचर फिल्म्स दर्शाई गई वो है ताढोम सारकीत और उम्माथात द रिदम ऑफ कोडावा। सुषमन गोवा मार्चीज ऑन, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी और गीतांजलि की विशेष प्रदर्शनी भी रही। आज के गैला प्रीमियर थे कोंकणी फिल्म क्लाउडिया, मनुष्य, आंध्र किंग, तालुका, दिस टेम्पटिंग मैडनेस और रात अकेली है द बंसल मर्डर्स। समापन के दिन कल अनिल रविपुड़ी निर्देशित संक्रांति की वस्तुनाम ये तेलुगु फिल्म दर्शाई जाएगी। इस वर्ष भारतीय चित्रावली विभाग में NFDC द्वारा नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के तहत पुनर्स्थापित यानी रिस्टोर्ड की गई 18 क्लासिक फिल्मों का एक विशेष पैकेज प्रदर्शित किया। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर श्रेणी में 5 फीचर फिल्मों को शामिल किया गया, जिनमें नेपाली शेप ऑफ मोमो, बांग्ला विनोदिनी एकटी नटियर उपाख्यान और हिंदी की केसरी चैप्टर 2 शामिल थी। भारतीय चित्रावली विभाग इस संकल्प के साथ संपन्न हो रहा है कि भारतीय सिनेमा अपनी रचनात्मकता, समर्पण और सांस्कृतिक गहराई के साथ आने वाले वर्षों में भी विश्व सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ना जारी रखेगा। ये खंड भारतीय कहानी कहने की कला की गौरवशाली यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और रहेगा। Velma Fernandez brings the section What's Coming Up. Lights dim, a hush falls over the hall. A single spotlight sweeps across the audience as the screen flickers to life. Well, dear listeners, dreamers and storytellers, tomorrow we shall welcome the final sunrise of this unforgettable cinematic journey. Our hearts have danced to the rhythm of stories untold, and IFFI 56 in Goa has become a home for voices from every corner of the globe. Tomorrow, the spotlight burns brighter than ever. The gala premiere has Anand L. Rai's Tere Ishq Mein. Retrospective Rajinikanth will present Lal Salam, and special screenings include Musafir, Nari the Women, Puttul and Shahid. UNICEF at IFFI has one movie, Dinesh Selvaraj's The Mermaid or Kadal Kani. The closing film listed in Rising Stars is A Useful Ghost or Phi Chaidai Ka. Thai filmmaker Ratchapum Bunbanchachoke upends pre-existing genres with a fantastic story about a ghost that inhabits a vacuum cleaner to become useful. The humorous and visually striking debut feature was the Grand Prix winner of Cannes Critics Week at the Cannes Film Festival this year. There are 5 screenings of this movie tomorrow. IFFI dignitaries and delegates will gather once more for the grand closing ceremony, a night where the reels stop but the magic begins. Remember, there are 15 films nominated for the Golden Peacock Award and 3 Silver Peacock under international competition. 7 films are nominated for the Silver Peacock Award in the Best Debut Feature Film of a Director competition. We await tomorrow, a night of celebration, surprises, tributes, and the crowning of the cinematic gems that define this festival. The closing ceremony will pay a formal tribute to the late actor Dharmendra Ji, whose career spanned 300 films across 6 decades.
The closing ceremony will also honor superstar Rajnikant's 50-year cinematic journey with a special felicitation tomorrow. We here at Akashvani thank our listeners for being a part of this cinematic journey with us. Until we meet again next year at the International Film Festival of India in Goa, keep watching, keep dreaming, and keep telling stories that shape the world. And that's a wrap on Day 7 coverage right here in Goa. While the focus today was squarely on technical mastery with Peter Draper's VFX masterclass, the energy remains fixed on the final night's outcome. The international jury has now viewed the final Golden Peacock contenders, but there's still one massive event left. The grand closing ceremony where legendary actor Rajnikant will be honored for 50 years of cinema, and a final moving tribute will be paid to the late Dharmendra. Join us tomorrow for the live commentary of the closing ceremony of the 56th IFFI from 5:30 p.m. over the entire FM Rainbow Network. So till we meet next year, it's goodbye and good night from the last report of this 56th IFFI. पर्दे पर सब राजों से पर्दे को उठाती तस्वीरें, वो दिल बहलाती कभी हंसाती कभी रुलाती तस्वीरें। ये हिंदुस्तानी सिनेमा, ये मूवीज, ये फिल्में रहती है करोड़ों के दिल में। भारत के सिनेमा की है जय जयकार, भारत के सिनेमा। आप सुन रहे थे पणजी गोवा में आयोजित भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण के आज के दिन की रेडियो रिपोर्ट। ये आकाशवाणी पणजी की प्रस्तुति थी, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। You were listening to a radio report of the 56th International Film Festival of India. This report was produced by Akashvani Panaji, Goa, and came to you from the Delhi station of Akashvani.